औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। मैं आपका होस्ट अली काजी। टेलीफोन नंबर हमारा नीचे चल रहा है 0208-662-4550 और हमारा ईमेल एड्रेस विच आई नो कि बहुत से ईमेल्स देख के आप लोग मैं तो ख़ुद परेशान हो जाता हूँ। ईमेल एड्रेस हमारा यही है info@iqra.tv। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, एनी इंक्वायरीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। और आपको पता है जिस तरह आज के नौयत का शो है उसके अंदर मैं सारे ईमेल्स के थ्रू जा रहा हूँ और होपफुली आप लोगों को इसके जवाब भी मिल रहे हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो बाय ऑल मीन्स गिव मी अ कॉल और सेंड मी अनदर ईमेल with your telephone number and I will be happy to give you a call and point you in the right direction. शरीन से हम लोग बात तो नहीं कर रहे थे, उनका ईमेल के हम लोग जवाब दे रहे थे और शरीन ने ये कहा था कि उनकी जो मोर्गेज है इट हैज़ कम टू ए एंड और जो प्रिंसिपल अमाउंट है इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. Okay, and just to give you awareness in terms of how serious this matter is, ठीक है, the lender can take legal action and to repossess your home. That is the first and foremost thing. ठीक है, so what are your options? That is the main thing कि आपके options क्या हैं. देखें, सबसे पहले तो आप अपने lender को contact करें and tell them that you haven't got a provision, you haven't made a provision to actually return their principal amount, which is really, really important, and you need to make sure that you're actually informing the lender as well. चाहे आपके पास 6 महीने रह गए, साल रह गया, 2 साल रह गए या 3 साल रह गए, आप lender के कान तक ये बात पहुंचा दें ताकि you can start working on some sort of a solution as well. And finding a solution, letting the lender know, और usually ये लोग काफ़ी compassionate भी होते हैं in regards to that. ठीक है, that's the first and foremost thing. Maybe you might be able to renegotiate something or something or the other. ठीक है, लेकिन आप अपने lender से ज़रूर बात करें. And again मैं बात कर रहा हूँ from a conventional mortgage point of view or from an Islamic mortgage point of view, Islamic finance point of view. You can, it's one rule for everyone. ठीक है, और so अगर वो आपसे नहीं होता तो then you can certainly get some contact a financial expert who might be able to put you in the right direction and tell you कि भी ये आपकी possibilities हैं. For instance, he might say कि जी आप किसी independent mortgage broker के पास चले जाएं and try and remortgage the property. Again, it's dependent on people's circumstances whether they'd be able to get a mortgage or a remortgage on that property or not. ठीक है, तो ये सारी जो issues हैं ये आपको एक mortgage broker भी ही बता सकेगा कि आपकी क्या situation है इस वक्त and whether you are in a position to borrow more money to pay off this lender. That's how a remortgage works. So basically, if you go to an independent mortgage advisor and he turns around and says, right, okay, yes, you will be able to arrange the finance for this, will be able to get a remortgage on this property. Technically what he's saying, remortgage का मतलब ये होता है कि वो किसी और lender से जाके वही पैसे जो हैं जो आपने इस lender को देने हैं वो इस lender से लेके उनको pay off कर देगा और फिर your new deal will be with this lender. So that is called a remortgage. So basically you will still have to be paying a mortgage and so on and so forth. Lekin this time round, I think more than likely they would probably put in a repayment plan or some sort of a situation where आपके साथ ये फिर से ना हो. ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आप कर सकती हैं. अगर if you are above the age of 65 or and so on and so forth, तो उसके लिए भी provisions होते हैं और certainly without a doubt, or there are specialists that can help you with that as well. So there are certainly options for you in regards to what you can do and what you can't do. Obviously there's always that option कि आप अपनी property जो है वो बेच भी सकती हैं. अगर आप बेचें तो you would be then left with after paying the bank, you'd be left with whatever money you have made on that property as well, and possibly you might be able to buy a smaller home or without a mortgage. So there are certain things
that you can actually do. सब कुछ doom and gloom नहीं है इसके अंदर, आपकी situation के अंदर. And I hope you come to the right sort of decision. If you want extra advice or something like that, आप please मुझे email ज़रूर करें Shireen, and I'd be happy with your telephone number, and I'd be happy to give you a call and find out exactly what your situation is and maybe point you in the right direction in regards to that as well. तो इसके ऊपर आप ज़रा थोड़ा सा ये सोच विचार कर लेना कि आपने करना क्या है and how you want to take things forward. Well, how you want to take things forward and what position you're in, where you can, what you can do and what you can't do. ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इसके ऊपर परेशान होने वाली बात नहीं है. इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फजलो करम करेगा, and I think you will be out of your problem. I think the only problem that you did, you know, the only problem that you didn't foresee was कि जब mortgage का period ख़त्म होगा, how will you be paying the principal amount. लेकिन अब ये situation ये है कि a lot of mortgage advisors would actually possibly direct you in a repayment plan sort of a situation. I hope that answers your question. I hope कि आपका ये काम जो है ये जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए इंशाल्लाह ताला. Right, okay, so we have another email from Chaudhry Sahab, and he is looking to remortgage his properties. And Achha, right, okay, so these are buy-to-let properties. And how does that work? Okay, right, okay, so remortgage is pretty straightforward and simple. Basically what you're doing is, आपके पास अगर lender A है, आप lender A से lender B के पास जा रहे हैं, ठीक है? आप या lender A के पास भी आप जा सकते हैं, उनसे भी आप कोई बेहतर deal ले सकते हैं, if there is a better deal. So that's pretty much what so you're refinancing your loan. That's pretty much what it is, ठीक है? The way it works, if you're changing lenders, is कि lender A ने पैसे आपको दिए हुए हैं, lender B जो है वो आपको उतने ही पैसे लेके इनको वापस दे देगा, इनकी अमाउंट. सो बेसिकली और वो जो मॉर्गेज है वो दे विल टेक ओवर फॉर वॉट एवर कॉन्ट्रैक्ट यू अग्रीड विद दम, एंड इट कुड बी होपफुली अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाई मोस्ट पीपल चेंज एनीवे, टू गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट, अ बेटर डील out there in the market, and that's pretty much how it works. And that is how it works for residential homes and also for buy-to-let as well. So I don't think you need to worry about that aspect of things. Yes, even though they are your own properties, you would still need to have mortgage valuations done on those properties as well. ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि even if it is a new bank, the new bank would certainly be sending in their chartered surveyor, ठीक है, ताकि वो जाके वो देख सके कि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी कर सकती है और वो प्रॉपर्टी इज इट वर्थ what they are lending to you as well. I think that's important as well. So I hopefully that will answer your question. Right, okay, so now let's just go to the other emails as well. There were a couple of very, very important emails here which I have to go through, ताकि मैं, बल्कि मैंने यही सोचा था कि शो से पहले कि मैं ये जो emails हैं ये ज़रूर आपके सारे थ्रू करूँगा, ठीक है, right, okay. Okay, so we have another inquiry here, another email. ये थोड़ा सा ज़रा clearly नहीं लिखा हुआ, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगा. Right, okay, so you own a council property, okay, and the council property, you have a right to buy on it. Should you buy it? And what deposit do I need to put down? Okay, right, okay, that's very interesting, very interesting. Now, how does a council property work? So basically, your council property, you are then given, after a certain period of time, are given a right to buy situation on a council property. Usually ये 5 साल के बाद होता है, अच्छा, लेकिन 5 साल के बाद ये हर साल जब भी ऊपर जाता है तो आपका जो डिस्काउंट है वो भी बढ़ता रहता है, which is actually very, very important, ठीक है, this is very, very important. तो यूजली आपको वो 30, anywhere between 35 and 50% शुरू में दे देते हैं परसेंट डिस्काउंट, लेकिन उसके बाद ये 1 या 2% हर साल बढ़ता रहता है until a maximum discount of 70%.
So for instance, if you're buying a property or you're living in a property, a council property, which is worth, I don't know, £200,000, and you get the full 70% discount, तो ये आपको जो 2 लाख की प्रॉपर्टी है ये आपको पड़ी 60,000 पाउंड के अंदर. तो it is a phenomenal step in the right direction, because you become a house owner, but then you also have a phenomenal amount of equity in your property as well. So अगर कोई ये बंदा करना चाह रहा है जो काउंसिल प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, certainly I would recommend they do this without a shadow of doubt. And ये चीज़ जो है ये आप इसको ज़रूर देखें और ज़रूर करें. Now इसके अंदर आपने एक और चीज़ यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है कि what sort of deposit do you need. मैं आपको बता देता हूँ कि there are lots of lenders out there that would be, because there's such a vast equity in the property anyway, ठीक है, तो a lot of lenders would deal with you without you giving any sort of a deposit as well. So if you are having difficulties in regards to raising a deposit, usually 5% होता है या 10% होता है, up to X, Y and Z, ठीक है, तो वो तो आपकी मर्ज़ी होती है. लेकिन अगर आप 5 या 10% भी नहीं रेज़ कर सकते, तो it's not an issue at all. There are lots of lenders, or high street lenders I'm talking about, that will be happy to do business with you. तो ये आपको अगर कोई चीज़ इस तरह की ऑफ़र हुई है, तो I would certainly suggest very strongly कि आप इसको ज़रूर देखें और इसको कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द ख़रीद भी लें, क्योंकि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अंदर ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि देयर इज़ अ सर्टन टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर अगर आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली है तो एक थोड़ा टाइम फ्रेम होता है. आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन इट माइट बी अराउंड 5 years या 5 या 6 साल हैं जिसके अंदर आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते. और अगर आपने बेची तो देन यू हैव टू रिटर्न सम ऑफ द डिस्काउंट बैक. तो ये आप ज़रूर अपने जहन में रख लेना कि अगर आप ख़रीदेंगे भी तो ये आप ना सोचना कि आप ये फ़ौरन बेच के प्रॉफिट जो है वो निकाल लेंगे एंड देन यू बी एबल टू बाय अनदर हाउस. वो होता यही है कि 5-6 सालों के लिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काउंसिल इट इज़, और ये डिपेंडिंग ऑन कंफर्मेशन, तो वो आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकें, वरना आपको डिस्काउंट जो है आपको जो मिला था वो आपको वापस करना पड़ जाएगा. तो ये थोड़ा सा ज़रा आप अपने दिमाग के अंदर रख के फिर आगे जो भी स्टेप्स करने होंगे वो आप स्टेप्स करना. टाइम हमारे पास कम ही है, तो हम लोग एक और ईमेल कर लेते हैं, ठीक है ना जी, और कोशिश ये करते हैं कि इसका जो है ना जवाब मैं आपको पूरी तरीके से दे सकूं. राइट, ओके, राइट, ओके. सो वी हैव गॉट एन ईमेल व्हिच बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर कि पिछले हफ्ते मैंने जिस तरह बात करी थी रेंटल यील्ड की, तो ये पूछ रहे हैं मलिक साहब कि ये है क्या, रेंटल यील्ड है क्या और किस तरह वर्कआउट करते हैं इसको. तो ये मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ रेंटल यील्ड क्या होती है. ठीक है, देखें आपको मैं बड़े एक आसान तरीके से बता देता हूँ कि किस तरह ये वर्क करता है. राइट, ओके. सो यू हैव अ बैंक, इस्लामिक मोर्गेज और कन्वेंशनल मोर्गेज, इट डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन यू हैव अ बैंक और उन्होंने आपको एक रेट दे दिया. फॉर इंस्टेंस उन्होंने आपको दिया कि जी हम आपसे 5% पर एनम इंटरेस्ट लेंगे इस प्रॉपर्टी का, और आपने ये फ़िक्स करवा दिया है या वट एवर टर्म्स यू अग्रीड, लेकिन आपको ये पता है कि आपने 5% इंटरेस्ट देना है, 5%, और जो उसके ऊपर देना होगा वो होगा रीपेमेंट. ठीक है, तो ये बेसिकली आपने 5% देना है. हाउ डज़ रेंटल यील्ड वर्क. और आपने प्रॉपर्टी अगर ख़रीदी है बाय टू लेट, तो आपने उस प्रॉपर्टी को आपने आगे रेंट के ऊपर देना है. तो आपने वर्कआउट ये करना है कि आपका जो 5% ये वाला देना है ये इस प्रॉपर्टी से निकलेगा ये नहीं निकलेगा. दैट्स प्रिटी मच हाउ यू डू इट. ठीक है, इस सोच आपकी इसी तरह होनी चाहिए. तो आपने ये करना है कि जो आपका रेंट है पर मंथ, वो आपने लेके उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ओवर द पीरियड ऑफ 1 year, क्योंकि आपने 1 साल का रेट निकालना है. ठीक है, तो वो आपका निकल गया. से फॉर इंस्टेंस इफ इट्स 500 pounds, ठीक है, तो 500 pound टाइम्स 12 विच इज़ 6000 pounds, और 6000 को आपने डिवाइड करना है परचेस प्राइस पे. तो अगर इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है 1 लाख पाउंड की, ठीक है, तो आपने 6 को
इसके साथ वो किया परसेंटेज निकाली कि 6,000 की परसेंटेज अगर आप निकालें 1,00,000 पाउंड में, तो ये बनती है अप्रॉक्सीमेटली 6% आई थिंक, हाँ 6%, तो 6% बनी। तो आपने बेसिकली 5% बैंक को देना है और आपकी यील्ड जो है, जो आपकी इनकम आ रही है प्रॉपर्टी में से, वो है 6%। तो 6% में से 5% तो सीधा सीधा बैंक को चला जाएगा, ठीक है, प्लस जो भी, तो आपके पास बचा 1%। तो आप इस तरह अपनी रेंटल यील्ड वर्क करते हैं, एंड दिस इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट कि यू वर्क ऑन अ परसेंटेज रादर देन कि जी कुछ लोग होते हैं ना कि जी वहाँ से 1200 पाउंड मिल रहा है, यहाँ 1300 पाउंड मिल जाएगा, तो वो उस तरह अपनी मॉर्गेज वर्कआउट करते हैं। दैट इज़ द इनकरेक्ट वे। आप बेसिकली परसेंटेज के ऊपर ही वर्क करें ताकि आपको यहाँ का जो अंदाज़ा है, यहाँ जो है आपका शॉर्टफॉल ना हो कभी भी। तो आई होप कि ये रेंटल यील्ड जो है ये आपको थोड़ा सा ज़रा समझ आ गया है कि ये हाउ the percentage, how you want to work it into a percentage rather than actually taking an income, a monetary amount. So that's very, very important. अच्छा जी, right, okay. देखें हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो यू नो आई डोंट वांट टू गो इनटू अनदर ईमेल, क्योंकि वो मैं आधा आपको आंसर करूँगा, आधा नहीं करूँगा। तो मैं फिर से आपको याद दहानी करा दूँ कि इकरा टेलीविज़न ने फिर से एक शुरू किया है इसी शो के ऊपर, कि जहाँ पर हम लोग आएंगे आपके पास, आपके बिजनेसेस के पास, और हम लोग आपके बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे, आपके बिजनेसेस को आपको प्रमोट करेंगे, और दिस इज़ ऑल बीइंग डन very charitably, free of cost, ठीक है। एंड देयर इज़ नो अदर टीवी चैनल दैट एक्चुअली प्रपोजेस टू डू समथिंग लाइक दिस, कि जहाँ पर हम लोग लोगों के पास जाके और उनके बिजनेसेस प्रमोट कर रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज, which is fantastic, which is a very very big advantage for you guys as well. और यही जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये आप अपने सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. So that's the first and foremost thing. So if you have a business, a wholesale, a retail, if you're working from home, if you're providing any kind of service, import, export, insurance, anything, travel insurance, travel agencies, anything at all, as long as it's a business which has been set up by yourself, please absolutely give us a call. We will send our crew over and we will do the whole show with you, ठीक है. और उसके अंदर आपको इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी मिलेगी. आपका इन रिटर्न आपका क्या फ़ायदा है? आपका ये फ़ायदा है कि आपको आपका बिजनेस प्रमोट हो रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप किसी की कम्युनिटी के अंदर हेल्प भी कर रहे हैं. एंड इफ़ यू कैन बिकम दैट मोटिवेटर, certainly do give us a call or send us an email, and we'd be more than happy to arrange some sort of a time with you and come down and do this sort of recording as well. Time हमारे पास ख़त्म हो गया. काश थोड़ा और लंबा होता, काश मैं 2-4 और ईमेल्स आपके साथ पढ़ लेता, काश उनके भी जवाब दे देता. कोशिश मैं यही करूँगा कि ये जो ईमेल्स हमारे पास आए हैं उनको मैं वापस ईमेल भी कर दूँ. अगले हफ्ते तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.